السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر کہتا ہے، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشِ جگر گوشۂ بطول۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشِ جگر گوشۂ بطول۔ مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ آئیے بغیر کسی انتظار کے سب سے پہلے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مستقل طور پر آج تقریباً یہ 6ویں محفل ہے جو منعقد کی گئی ہے ذکر امام حسین کے نام پر، اور یہ جو لوگ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، الحمدللہ وہ لائق مبارکباد ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ کے کسی کے وجہ سے اتنے لوگ اکٹھا ہو کر کے ذکر امام حسین کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، بڑی بات ہے، کیونکہ اگر یہ انتظام نہ کیا جائے یا اہتمام نہ کیا جائے تو کسی کے اندر اتنی مجال نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی لا کر کے اس سے ذکر امام حسین کرایا جائے۔ حضرات، یہ اکثریت کی محبت ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے، لوگوں کے دلوں کا جذبہ ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ہے کہ ہر ایک دن کوئی نہ کوئی انتظام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس انتظام کو پورا کر کے الحمدللہ اپنی منزلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اور حضرات، یقین جانیے کہ جہاں 15، 20، 25 یا 50 لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، وہاں پر کوئی نہ کوئی نیکوکار ہوتا ہے، وہاں پر کوئی نہ کوئی پرہیزگار ہوتا ہے۔ اگر پرہیزگار نہ بھی ہو، نیکوکار نہ بھی ہو، تو نہ کوئی نمازی ضرور ہوا کرتا ہے۔ اور ایک نمازی کی اگر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا مقبول ہو گئی تو یقین مانیے یہ پروگرام کرانا اور پروگرام سننا اور ذکر امام حسین کی محفل سجانا، رچانا، بسانا، یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ تو حضرات، وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا کرتے ہیں، اور یہ مت جانیے کہ صرف آپ کے یہاں ذکر امام حسین ہوتا ہے، بلکہ یہ جان لیجئے کہ جہاں جہاں امام حسین کے شیدائی ہیں، جہاں جہاں امام حسین کے ماننے اور چاہنے والے ہیں، وہاں وہاں 10 روزہ پروگرام، 10 روزہ ذکر امام حسین کیا جاتا ہے۔ امام حسین کے زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، امام حسین کے طور طریقے کو بیان کیا جاتا ہے، اور بیان کرنے کا مطلب و مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر انہی کا طریقہ سما جائے، انہی کا طریقہ ہمارے اور آپ کے اندر بس جائے، ہم بھی انہی کے طریقے پر، انہی کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ حضرات محترم، یقین جانیے یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ ذکر امام حسین کی محفل
اپنے گھروں میں رچاتے ہیں، اپنے گھروں میں بساتے ہیں، تو حضرات آج کے دور کے حساب سے ہر کسی کے دلوں کے اندر کوئی نہ کوئی بغض ہوا کرتا ہے، جس بغض و عناد کے بنا پر کوئی کسی کے ہاں جانا نہیں چاہتا ہے۔ لیکن حضرات یہ ایک ایسی جگہ ہے، نہ کسی کو بغض ہونا چاہیے، نہ کسی کے اندر بغض و کینہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی ایک کا ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ یہ بیت الرسول ہے، رسول اللہ کا گھر ہے۔ اور حضرات رسول اللہ کے گھر میں اگر ذکر نواز رسول کیا جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، اور بہت بڑی ہی نہیں بلکہ اس محفل پاک کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ حضرات محترم، اس طرح سے تمہیدی گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آئیے کچھ سنانے سے پہلے، کچھ بتانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تقریباً 10:28 ہو چکے ہیں۔ ہم اور آپ تیزی نہیں کر پاتے ہیں، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی گھڑی ہے، کوئی کتنا بھی بڑا افسر یا کوئی کتنا بھی بڑا عالم یا کوئی کتنا بھی بڑا مفتی کیوں نہ ہو، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اسے جیسے چلنا ہے وہ اتنی ہی رفتار کے ساتھ چلا کرتا ہے۔ حضرات ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ابھی فلاں شخص جائے گا تب ہم ذکر کی محفل میں جائیں گے، لیکن وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ تقریباً 11 بجنے میں 10 منٹ باقی رہتا ہے تو پروگرام کا اختتام ہو جاتا ہے، اور اب جو ہے جا کر کے 20 منٹ کا وقت اور بچا ہوا ہے۔ اب اسی 20 منٹ میں انشاءاللہ العزیز جو کچھ مجھے بیان کرنا ہے اور بتانا ہے آپ کو، اسی 20 منٹ کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پھر جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میں نے کچھ بیان کیا تھا کل کی شب میں، کل کی رات میں، کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے تعلق سے حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ آپ کا استقبال، آپ کا سواگت بڑے بہترین انداز میں کیا جاتا ہے۔ کوفہ کے مسلمانوں نے بڑے عمدہ طریقے سے آپ کا سواگت کرتے ہیں، اور مورخین لکھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی نشست میں حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں تقریباً 40,000 کوفیوں نے اپنا ہاتھ دے کر کے آپ کی غلامی میں شامل ہوئے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، لیکن امام مسلم بن عقیل کو کیا پتا تھا کہ انہیں دھوکہ ملنے والا ہے، ان کے ساتھ جو ہے دھوکہ بازی کی جانے والی ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے دل کو توڑا جائے گا، انہیں نہیں پتا تھا کہ انہیں بے سہارا اس کوفہ کی سرزمین پر چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں، امام مسلم بن عقیل جب دین کے پرچم کو وہاں بلند کرنا شروع کرتے ہیں تو حضرات چہار جانب حضرت امام مسلم کا صرف نام لیوا لوگ موجود ہوتے ہیں۔ چہار جانب امام مسلم کے قصیدے پڑھے جا رہے تھے، چہار جانب امام مسلم کے تاریخ کے پل باندھے جا رہے تھے۔ جس کوفی کے زبان پر دیکھو امام مسلم کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حضرات جب عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہاں کوفہ کے سرزمین کا گورنر بن کر کے آتا ہے، قاضی شریع کو معزول کرتا ہے۔ حضرات معزول کرنے کے بعد جب آپ کو معزول کرنے کے بعد
عبیداللہ ابن زیاد جب خود جو ہے گورنر بن جاتا ہے تو اسی کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کے درمیان تقریر کرتا ہے، اے لوگوں سنو، اگر تم یزید کی بیعت توڑتے ہو، اگر تم یزید کو اپنا امیر ماننا چھوڑ دیتے ہو، اگر تم یزید کو اپنا خلیفہ ماننا ترک کر دیتے ہو تو یاد رکھو تمہاری گردنیں مار دی جائے گی، تمہارے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جائے گی۔ حضرات اس طرح سے عبیداللہ ابن زیاد تقریر کرتا ہے، لوگوں کو دھمکاتا ہے، لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ حضرات جب ہانی بن عروہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، حضرات محترم عبیداللہ ابن زیاد اعلان کرتا ہے جو امام مسلم بن عقیل کو پکڑ کر کے لائے گا تو اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اسے انعام و اکرام سے جو ہے نوازا جائے گا۔ حضرات تاریخ بتا رہی ہے عبیداللہ ابن زیاد کے کتے اس کے سپاہی جہاد جانب پھیل گئے، امام مسلم بن عقیل کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرات امام مسلم بن عقیل جو ہے نماز فجر ادا کرنے کے لیے جب مسجد پہنچتے ہیں تو ایک وقت ایسا تھا کہ جب آپ سلام پھیرتے تھے تو جہاں تک ان کی نگاہ جاتی تھی لوگ آپ کے غلامی میں شامل ہو چکے تھے، اتنے لوگ پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج وقت ایسا آ گیا ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل سلام پھیرتے ہیں تو سوائے حضرت ہانی بن عروہ کے کوئی نہیں دکھتا ہے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہے، حضرت عبیداللہ ابن زیاد کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہانی بن عروہ کے گھر میں جو ہے امام مسلم چھپے ہوئے ہیں، امام مسلم کو پناہ دیا گیا ہے۔ حضرات ہانی بن عروہ کو جو ہے بلایا جاتا ہے، ہانی بن عروہ کو سامنے لایا جاتا ہے، ہانی بن عروہ سے گفتگو کی جاتی ہے، اے ہانی بن عروہ سنو، اگر تم امام مسلم کے دامن کو چھوڑتے ہو تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، ورنہ تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت ہانی بن عروہ کا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ حضرات وہ ضعیف العمر شخص حضرت ہانی بن عروہ اپنے سینے کو تان کر کے عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کر کے للکارنا شروع کرتے ہیں، اے عبیداللہ ابن زیاد سن، میں تیری طرح لالچی نہیں ہوں، میں تیری طرح بکاؤ نہیں ہوں، ارے یہ زندگی جو ہے یہ نواز رسول کے صدقے میں ملی ہے، یہ زندگی میں نواز رسول کے لیے قربان کر دوں گا، لیکن تیرے سامنے میں اپنے سر کو جھکاؤں گا نہیں، میں تیرے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاؤں گا۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے حضرت ہانی بن عروہ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی۔ حضرت ہانی بن عروہ کہتے ہیں اے عبیداللہ ابن زیاد سن لے، تو نے جو کچھ بھی کیا ہے اب بھی تیرے پاس وقت ہے، بخشش کا دروازہ کھلا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اب بھی تو اپنے گناہ سے توبہ کر لے۔ اللہ رب العزت کارساز ہے، اللہ رب العزت رحیم ہے، اللہ رحم فرمائے گا، تیرے گناہ کو بخش دے گا، تجھے معاف فرما دے گا۔ حضرات اتنا کہنا تھا، عبیداللہ ابن زیاد کہتا ہے اے ہانی بن عروہ میں تمہاری تقریر سننے کے لیے نہیں بلایا ہوں، میں تمہاری بات سننے کے لیے نہیں بلایا ہوں، میں تمہاری نصیحت کو سننے کے لیے نہیں بلایا ہوں، بلکہ میں اس لیے بلایا ہوں کہ کیا تو یزید کو اپنا خلیفہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ ہانی بن عروہ کہتے ہیں اس جسم میں اگر خون کا ایک قطرہ بھی رہے گا تب بھی میں یزید کو اپنا خلیفہ تصور نہیں کروں گا، یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانوں گا۔ آخر کیوں نہیں مانے گا؟ یزید کے اندر کمی کیا ہے؟ ہانی بن عروہ کہتے ہیں کیا تجھے نہیں پتا ہے کہ یزید شرابی ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا ہے یزید چغل خور ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا ہے یزید زناکار ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا ہے یزید کے اندر طرح طرح کی برائی پائی جاتی ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا ہے یزید فاسق و فاجر
फाजिर है, क्या तुझे नहीं पता है यजीद जालिम है, क्या तुझे नहीं पता है यजीद जाबिर है। अरे इन सारी बुराइयों को दरकिनार कर दे, क्या तू नहीं जानता है कि यजीद कौन सा काम कर रहा है? या तुझे मालूम नहीं है कि कुरान और सुन्नत को पामाल किसने किया? कुरान और सुन्नत के इज्जतों को पामाल किसने किया है? नबी की सुन्नतों को बर्बाद किसने किया है? किसी और ने नहीं बल्कि यजीद ने किया है। ऐसे नापाक शख्स को मैं अपना खलीफा कैसे तसव्वुर कर सकता हूँ? मैं अपना खलीफा कैसे मान सकता हूँ? हजरत इतना कहना था। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहता है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हानी बिन उरवा कहते हैं ऐ मरदूद सुन ले, तू जिसे मरना कहता है, अरे वो मरना नहीं, वही तो असल जिंदगी है, वही तो असल जिंदगी है। तू उसे फना कहता है, नहीं मैं उसे फना नहीं कहता हूँ बल्कि मैं उसे बका कहता हूँ। वो बका वाली जिंदगी है। तू मारना जानता है, मैं सब्र करना जानता हूँ। मेरे इमाम ने मुझे सब्र करना सिखाया है। मुझे पता है कि तू मुझे मार देगा, मुझे मालूम है तू मुझे कत्ल कर देगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मरने के लिए तैयार है, हम कटने के लिए तैयार है, इसलिए कि मैं नबी के सामने रसूआ नहीं होना चाहता। अपने ईमान का सौदा करके नबी के सामने मैं रसूआ नहीं होना चाहता हूँ। क्या तुझे क्या मालूम है कि नबी की मोहब्बत क्या होती है? मुझे पता है तू मुझे कत्ल कर देगा, मुझे पता है तू मुझे मार देगा। हजरत इतना कहना था। जब इतना कहना हुआ, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गज़बनाक हो गया, उसकी आंखें सुर्ख हो गई। जब उसकी आंखें सुर्ख हो गई, उसने अपनी जल्लाद को हुक्म दिया इसका हानी बिन उरवा का सर तन से जुदा कर दिया जाए। हजरत जल्लाद बयान से तलवार निकालता है और हानी बिन उरवा का सर तन से जुदा कर देता है। हजरत जब सर तन से जुदा हो जाता है तो हजरत हानी बिन उरवा की शहादत हो जाती है और उनकी शहादत पूरे कूफा में खुशबू की तरह फैल जाती है। जब पूरे कूफा में हजरत हानी बिन उरवा की शहादत फैल गई तो लोगों के अंदर और डर पैदा हो गया, लोगों के अंदर और दहशत पैदा हो गई, लोग और घबराने लगे। हजरत तारीख बताती है फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया कि ऐ लोगों, जिसने भी जो है मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी है, बराए करम वो जो है मेरे पास ला करके हाजिर कर दे, वरना उसके घरों को जला दिया जाएगा, वरना उसकी बस्तियों को उसके घरों को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। हजरत तारीख बताती है हजरत मुस्लिम बिन अकील जो है सबसे पहले हानी बिन उरवा के घर में मौजूद थे, लेकिन वहां से निकल करके आप उस जो है मस्जिद में पहुंचते हैं और मस्जिद से जब निकलते हैं तो हजरत अब सोच रहे हैं कहाँ जाऊं, किसके दरवाजे पर जाऊं, कौन मेरी मदद करेगा। हजरत तारीख बताती है बाजारों में फिर रहे हैं, अपने छोटे बच्चे नन्हे बच्चों को अपने सीने से लगा करके बाजार की गलियों में फिर रहे हैं। शायद कि कोई दरवाजा खोल दे, शायद कि कोई मुझे पनाह दे दे, शायद कि मुझे कोई ठहरने के लिए जगह दे दे। हजरत लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों ऐसे साबिरों पर। और हजरत वो कूफा के जालिम लोग थे, वो कूफा के अहद शिकन लोग थे जिन्होंने इमाम मुस्लिम बिन अकील को देखते ही अपने दरवाजे को बंद कर लिया करते थे। हजरत एक ऐसे दरवाजे पर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील पहुंचते हैं जिन्हें काजी शरीफ कहा जाता है। एक बहुत अच्छे और बहुत नेक और बहुत परहेजगार शख्स थे।
जिनके दिलों में बेपनाह हुजूर की मोहब्बत थी, जिनके दिलों में बेपनाह अहले बैत से मोहब्बत थी। हजरात तारीख के औराक शाहिद है। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील आपके दरवाजे पर पहुंचते हैं, जिनकी आंखों में बीनाई नहीं है, जो है आंखों से अच्छी तरह देख नहीं सकते। हाजी शरीफ दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं कौन हो तुम और इतनी रात को बाजार की गलियों में क्यों घूम रहे हो? हजरात मुस्लिम बिन अकील कहते हैं अरे बाबा जान सुनो सुनो, अरे बाबा जान मेरा यहाँ कोई मददगार नहीं है, मैं यहाँ मुसाफिर हूँ, मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं हो, मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं अपने देश को छोड़ करके परदेश निकला हूँ। अरे बाबा जान यहाँ मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, यहाँ मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं है। हजरात इतना कहना था। हाजी शरीफ कहते हैं अरे बेटा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम किसके लाडले हो, तुम किस लिए आए हो? हजरात इतना कहना था। मुस्लिम बिन अकील कहते हैं ऐ बाबा जान मैं मदीना तैयबा से सफर करके इस कूफा के लोगों के बुलाने की वजह से इस कूफा की सरजमीन पर आया हूँ, मैं यहाँ मेहमान बन करके आया हूँ, लेकिन आज यह लोग मुझे दुश्मन समझ रहे हैं। कल एक वक्त ऐसा था कि जब मेरे लिए अपने जान को कुर्बान करने के लिए तैयार थे, लेकिन आज यही कूफा के लोग हैं जो मेरे खून के प्यासे हैं। मुझे एक नहीं बल्कि ना जाने कितने हजार खतूत भेज करके मुझे मेहमान के तौर पर बुलाया गया है, मुझे मेहमान के तौर पर यहाँ बुलाया गया है, लेकिन आज मेरे साथ धोखाबाजी किया जा रहा है, मेरे साथ बेवफाई की जा रही है, मुझे मेहमान बनाकर सताया जा रहा है। हजरात किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में लिखा था कि मुझे कूफा वाले मुसाफिर न समझो, मुझे कूफा वाले मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। मुझे कूफा वाले मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, और मैं मेहमान बनाकर सताया गया हूँ, मैं मेहमान बनाकर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। हजरात तारीख बताती है। हाजी शरीफ कहते हैं ऐ बेटा तुम्हारा नाम मुस्लिम बिन अकील है? हाँ हाँ बाबा जान मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है, मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है, मैं नवासे रसूल हूँ। इतना कहना था कि हाजी शरीफ खुशी से मचलने लगते हैं। हजरात तारीख बताती है हाजी शरीफ हजरत मुस्लिम के हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं ऐ बेटे ऐ इमाम मुस्लिम सुनो सुनो, इस घर को अपना घर समझ करके बैठ रहो, ये तुम्हारा ही घर है। हजरत काजी शरीफ मुस्लिम बिन अकील के हाथों को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद क्या देखते हैं कि चिराग जल रहा था। हजरत काजी शरीफ पूरी रात हजरत मुस्लिम बिन अकील की खिदमत करते रहे, मुस्लिम बिन अकील की खिदमत करते रहे। इसी माबैन हजरत तारीख बताती है, तारीख के औराक शाहिद है, इमाम हजरत मुस्लिम बिन अकील वही रात गुजारते हैं। रात गुजारने के बाद जब सुबह की सफेदी नमोदार होने लगती है तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के कुछ सिपाही हजरत काजी शरीफ के घर को घेर लिया करते हैं। हजरात जब काजी शरीफ के घर को घेर लेते हैं, किसी तरीके से हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जंग करने के बाद फिर वहां से निकल जाया करते हैं। अपने बच्चों को हजरत काजी शरीफ के घर में छोड़ करके आप बाहर निकल जाया करते हैं। हजरात जब बाहर निकल जाते हैं फिर रात की तारीकी आती है। जब रात की तारीकी आती है तो सोचते हैं अब यहाँ कयाम करूं, अब किसके दरवाजे पर जाऊं, कौन हमारी मदद करेगा। हजरात तारीख के औराक शाहिद है, यकायक आपकी निगाह एक खातून पर पड़ती है जो निहायत ही परहेजगार थी, जो निहायत ही नेकोकार थी, जिसका नाम हजरत तोआ बताया जाता है। हजरत मुस्लिम बिन अकील की निगाह हजरत तोआ पर पड़ती है। हजरत तोआ पर जब पड़ती है तो आप कहते हैं
ऐ मेरी बहन खातून सुनो सुनो, मैं यहाँ पर मुसाफिर हूँ, मुझे रहने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दो, मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। हजरात इतना कहना था। वो खातून कहती है कहीं तुम्हारा नाम मुस्लिम बिन अकील तो नहीं? हाँ हाँ मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है, मैं ही नवासे रसूल हूँ, मैं ही रसूल का नवासा हूँ। हजरात इतना कहना था कि वो खातून खुश हो जाती है और फौरन जो है हजरत इमाम मुस्लिम को अपने घर लाती है, उनके हाथ पैर को धुला करके हजरात खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद जब उसका बेटा यानी हजरत तुआउस खातून का बेटा आता है जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का पक्का सिपाही था, हजरात जब वो वापस घर में आता है तो वो माँ कहती है ऐ बेटे हमारी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया है, हमारी किस्मत जो है बुलंद होने वाली है, हम बहुत जो है उम्दा मकाम पर पहुंचने वाले हैं। क्या तुझे मालूम नहीं है वो नवासे रसूल जिनके चेहरे को देखने के लिए लोग तरस रहे हैं, वो नवासे रसूल हमारे घर में मौजूद है, हमारे घर में बरकतें अता कर रहे हैं, हमारे घर को रौनकें बख्शे हुए हैं, हमारे घरों को खुशियों से मसरतों से भरे हुए हैं। हजरात तारीख बताती है इतना सुनना था कि माँ और बेटे दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन दोनों के खुशी में इम्तियाज था। एक माँ जो खुश थी वो ये इस वजह से खुश थी कि मैं जो है हजरत मुस्लिम की खिदमत करके कल क़यामत के दिन यही हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों से आबे कौसर का जाम पीऊंगी, इस वजह से खुश थी। लेकिन इसी का बेटा जो लालची था, इसी का बेटा जो दगाबाज था, इसी का बेटा जो बेवफा था, इसी का बेटा जो धोखेबाज था, वो इस वजह से खुश हो रहा था कि मैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को इसकी खबर दे दूंगा, मैं उनको बता दूंगा कि जो है मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में मौजूद है, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मुझे बहुत सारे इनाम देगा, मुझे बहुत सारे इकरामात से नवाजेगा। हजरात इतना कहना था कि रात की तारीकी में वो शख्स वो हजरत तुआ का बेटा रात की तारीकी में निकल जाता है, फौरन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचता है और कहता है सुनो सुनो ऐ बादशाह सुनो सुनो, मैं एक खबर लेकर के आया हूँ, अगर मुझे वो खबर सुनोगे तो मुझे माला माल कर दोगे। वो हजरत तुआ का बेटा है लेकिन दगाबाज है, धोखेबाज है। हजरात तारीख बताती है वो शख्स कहता है ऐ बादशाह जिसको आप रात दिन तलाश रहे हैं, जिसके लिए आप जो है सिपाहियों को रातों दिन भेजते रहते हैं, वो शख्स मुस्लिम बिन अकील कहीं और नहीं बल्कि हमारे घर में मौजूद है, हमारे घर में तशरीफ रखे हुए हैं। हजरात इतना कहना था। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने फौरन 200 सिपाहियों को हुक्म दिया कि फौरन तो आके घर पे पहुंचा जाए, तो आके घरों को चार जानिब से घेर लिया गया। जब घोड़ों के टापों की आवाज हजरत मुस्लिम बिन अकील के कानों में पहुंची तो आप समझ गए कि हजरत तुआ के घरों को चार जानिब से घेर लिया गया है, चार जानिब से जो है बंद कर दिया गया है। हजरत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं शायद कि अब हमारी शहादत का वक्त करीब आ गया है। हजरत मुस्लिम बिन अकील जो है अपने सर पर आक़ाए करीम के दस्तार को सजाते हैं और अपने हाथों में ज़ुल्फ़िकार हैदरी को उठाते हैं और ज़ुल्फ़िकार हैदरी को उठाने के बाद हजरत तुआ के दरवाजे को खोलते हैं और दरवाजे को खोलने के बाद हजरत सबसे पहले हजरत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं ऐ लोगों सुनो अब भी तुम्हारे पास वक्त है, अब भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपने गुनाह से तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है और मेरे हाथ में हाथ दे करके मेरी गुलामी कबूल कर लो तो तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्श देगा, वरना याद रखो कल क़यामत के दिन तुम कौन सा मुंह लेकर के मेरे नबी की बारगाह में जाओगे, मेरे नाना जान की बारगाह में जाओगे। हजरात इस तरह से बहुत मुअस्सरदार तकरीर हजरत मुस्लिम बिन अकील करते हैं,
लेकिन उन कूफियों के दिलों पर जो है हजरत इमाम मुस्लिम के खून को पीने का महर लग चुका था। हजरत तारीख बताती है 200 सिपाही हजरत मुस्लिम बिन अकील को जहाज जानिब से घेरे हुए हैं, लेकिन हजरत तारीख बताती है जब हजरत मुस्लिम के तकरीर का कोई फर्क ना पड़ा तो इमाम मुस्लिम ने कहा अगर तुम जंग करना चाहते हो तो चलो हम जंग करने के लिए तैयार है। हजरत तारीख बताती है मौरखीन लिखते हैं कि जुल्फ़िकार हैदरी को जब आपने आसमान के फजाओं में लहराया है तो हजरत हवा की रुख बदलती हुई नजर आई है। हजरत तारीख बताती है, तारीख की औराक शाहिद है, जैसे बारिश के वक्त बिजलियां चमका करती है हजरत मुस्लिम बिन अकील की तलवार वैसे ही फजा में चमक रही थी। जब आपकी तलवार जो है उन कूफियों के सर पर पड़ती थी तो हजरत एक एक करके वासिले जहन्नम हो रहे थे। हजरत तारीख बताती है इमाम मुस्लिम बिन अकील ऐसे वार कर रहे थे जैसे कोई शेर वार करता हो। हजरत लोग वार करते हैं, एक बार में एक शख्स को मारते हैं, लेकिन इमाम मुस्लिम की ताकत कुव्वत का अंदाजा करो तो सही। हजरत मुस्लिम बिन अकील वह हाशमी शहजादा जब अपने तलवार पे घुमाना शुरू करता था तो लाशों का ढेर लग जाता था। हजरत तारीख बताती है चंद घंटों के अंदर 200 सिपाहियों में से 150 सिपाहियों को जमीन दोज करता हुआ नजर आ गया। हजरत 200 सिपाहियों में से 150 सिपाहियों को वज़्र जहन्नम पहुंचा दिए। हजरत मुस्लिम जो है हजरत मुस्लिम बिन अकील वज़्र जहन्नम पहुंचा दिए। जब 50 सिपाही बचे तो वो डर के मारे भागने लगे। हजरत तारीख बताती है, तारीख की औराक शाहिद है, इन 200 सिपाहियों का जो सिपहसालार था जिसका नाम मोहम्मद बिन अशाब था। हजरत तारीख बताती है मोहम्मद बिन अशाब अपने दबे पांव भागा और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचा और कहने लगा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद सुनो तुम कितने भी बहादुर में आओ लेकिन उस हाशमी शहजादे का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई उसके सामने टिक नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी ताकत कुव्वत नहीं है कि कोई उसका मुकाबला कर सके, कोई उसके सामने टिक सके। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अगर उसे पकड़ना चाहते हो तो 500 सिपाहियों को भेजो। हजरत तारीख बताती है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने 1-2 नहीं 2-4 नहीं बल्कि 500 सिपाहियों को एक बारीकी में हजरत इमाम मुस्लिम के जहाज जानिब भेज दिया गया। अब हजरत इमाम मुस्लिम के जहाज जानिब 500 सिपाही खड़े हुए हैं। हजरत इमाम मुस्लिम अपनी तलवार को फजाओं में लहरा रहे हैं, अपने तलवार को फजाओं में लहरा रहे हैं। आखिरकार हजरत मुस्लिम बिन अकील के जिस्मों पर ना जाने कितने जख्म लग चुके थे और वो जख्मों से निढाल हो चुके थे, जख्मों से चूर चूर हो चुके थे। सुबह से लेकर के दोपहर का वक्त हो गया, अभी जंग खत्म नहीं हुई है। ज़ोहर का वक्त करीब आ रहा था, ज़ोहर का वक्त करीब आ रहा था। आप जख्मों से चूर चूर हो गए थे। हजरत जब लोगों ने तमाम कूफियों ने देखा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सिपाहियों ने देखा कि मुस्लिम बिन अकील अपने ढाल हो रहे हैं, उनके जिस्मों पर बेशुमार जख्म लग चुके हैं, तो हजरत उनके सिपाहियों ने ऊंचे ऊंचे टीलों पर चढ़ गए और ऊंचे ऊंचे टीलों पर चढ़ने के बाद वहां से तीरों की बारिश करना शुरू कर दिया। आपके ऊपर तीरों की बारिश करना शुरू कर दिया और सिर्फ तीरों से ही नहीं बल्कि आपके जिस्मों पर, आपके सरों पर पत्थरों से वार करना शुरू कर दिया गया। हजरत जब पत्थरों से वार करना शुरू किया गया तो ये हाशमी शहजादा जो सुबह से लेकर के दोपहर तक बड़े जोशो खरोश के साथ, बड़े जो है हिम्मत ताकत के साथ खड़ी हुई है और पानी के मशकीज़े के पानी को निकालती है और पानी को निकालने के बाद एक जो है काशे में जमा करती है, एक
काशे में निकालने के बाद हजरत मुस्लिम के सामने पेश करती है। आका हुजूर आप इसको नोश फरमा लीजिए, आप इसको पी लीजिए। हजरात तारीख के और आप शाहिद हैं, लेकिन कुर्बान जाओ उन साबिरों पर, हजरत इमाम मुस्लिम की जात पर। इमाम मुस्लिम ने उस जो है प्याले को उठाया पीने के लिए, प्याले को उठाया, पानी के प्याले को उठाया और अपने होठों से लगाया ही था कि एक जालिम कूफी ने, एक मरदूद कूफी ने, एक जो है शैतान तलऊन कूफी ने आपके मुंह पर तलवार से एक ऐसा वार किया कि आपका सामने वाला होठ कट गया। हजरात तारीख बताती है जब आपका सामने वाला होठ कट गया तो उस प्याले में जिसमें पानी भरा हुआ था वो खून से लाल हो गया। हजरात जब वो खून से लाल हो गया तो हाशमी शहजादे को अब पानी पीने की जरूरत नहीं थी। हजरात तारीख बताती है इमाम मुस्लिम को फिर से हाथों को बांधा गया और जो है उनके जुल्फों को पकड़ करके जमीन से घसीटता हुआ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा था, अरे मुस्लिम बिन अकील, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यजीद को अपना खलीफा मान लो, यजीद को अपना अमीरुल मोमिनीन मान लो। तो हजरात मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, अरे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद सुन ले, मैं कोई ऐरो गैरो घराने से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, बल्कि मेरा ईमान इतना मजबूत है। अरे तू मुझे क्या, तेरे पूरे खानदान को कत्ल कर दे, फिर भी मैं ऐसे फासिक और फाजिल को अपना अमीर तसव्वुर नहीं करूंगा, अपना पेशवा तसव्वुर नहीं करूंगा। हजरत मुस्लिम का होठ कटा हुआ है, खून के फुव्वारे गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी जोश वही है, जज्बा वही है, ताकत और कुव्वत वही है, आपके अंदर बोलने का इनकलाब वही है। हजरात जबान में न कोई लफ्जिश है, जबान में न कोई लुकनत है। आप जैसे बहादुरी जुरात के साथ बोला करते थे, आप भी वही जुरात के साथ बोल रहे हैं। हजरात तारीख के और आप शाहिद है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जब सुना तो वो फौरन जो है उसकी आंखें सुर्ख हो गई और वो कहने लगा, यकीनन तुम मानने वाले नहीं हो। मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, अगर मुझे मानना होता तो मैं इस तरह से इतनी देर तक जंग क्यों करता। अगर मुझे मानना होता तो मैं जो है इमाम अली मकाम के साथ ही कुफा के सरजमीन पर आता। हजरात तारीख के और आप शाहिद है। इमाम मुस्लिम के इस बयान के बाद जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि ऐ जल्लादों सुनो, ऐ मेरे सिपाहियों सुनो सुनो, हजरत मुस्लिम को जो है महल जो है शाही महल के ऊपर ले जाया जाए। हजरात तारीख के और आप शाहिद है, वो दर्दनाक मंजर था। दोपहर का वक्त था, दोपहर की चलचलाती हुई धूप थी। हजरात तमाम जल्लाद मिल करके हजरत मुस्लिम को उस शाही महल के ऊपर ले जाया गया। जब आपको ऊपर ले जाया गया तो आपसे पूछा गया, तुम्हारी आखिरी कोई ख्वाहिश है तो बता दो। हजरात तारीख के और आप शाहिद है, अब जिंदगी और मौत के बीच खड़े इमाम मुस्लिम है। वो कहते हैं, हाँ मुझे पता है तुम लोग मुझे मार दोगे, मुझे कत्ल कर दोगे, लेकिन कत्ल करने से पहले मेरी 4 वसीयतें सुन लो, मेरी 4 वसीयतों को मान लो। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से इमाम मुस्लिम कहते हैं, मैं तुझसे कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि मैं एक वसीयत कर रहा हूँ। मुझे पता है तू मुझे कत्ल कर देगा, लेकिन मेरी वसीयत को पूरा कर देना। मैं जब यहाँ कूफा की सरजमीन पर आया था तो मैंने कूफा के कुछ लोगों से उधार पैसे लिए थे, लिहाजा मेरे इंतकाल के बाद, मेरे कत्ल के बाद मेरे घोड़े को बेच देना और बेच करके उसकी कीमत अदा कर देना। हजरात ये पहली वसीयत थी। और दूसरी वसीयत हजरत मुस्लिम कहते हैं, मैंने जो है
गलती से इमाम हुसैन को खत लिख दिया है कि कूफा के हालात कारसाज हैं, वो तैयारी बना चुके होंगे, लिहाजा उनको रोक दिया जाए, कूफा ना आने दिया जाए। हजरात तारीख के औराक शाहिद है, इमाम मुस्लिम बिन अकील दो वसीयतें बयान करने के बाद तीसरी वसीयत कहते हैं कि ऐ लोगों, जब मुझे ऐ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, जब तू मुझे कत्ल कर देना तो मेरे जिस्म को बेरायगा ना छोड़ना, मेरे जिस्म को कहीं दफन कर देना। हजरात तारीख के औराक शाहिद है। और चौथी वसीयत कहते हैं, ऐ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, तेरी दुश्मनी मुझसे है, मेरे दो नन्हे नन्हे बच्चे मेरे साथ आए हुए हैं, खुदा के वास्ते वो यतीम हैं, वो बेसहारा हैं, उनका कोई मददगार नहीं है, लिहाजा तेरी बारगाह, तेरी जो है दरबार में ये अर्ज़ा है कि मेरे बच्चों को सही सलामत मदीना तैयबा पहुंचा देना। ये मेरी चार वसीयतें हैं। हजरात, इतना कहने के बाद इमाम मुस्लिम को शाही महल के ऊपर ले जाया गया और हजरात कुर्बान जाओ इमाम मुस्लिम के जात पर। इमाम मुस्लिम जब तक लड़ते रहे तो आप बहादुरी के जौहर दिखा रहे थे, लेकिन अब आप कत्ल होने जा रहे हैं, अब आप शहीद होने के लिए जा रहे हैं, फिर भी चेहरे पर मुस्कान है, चेहरे पर मुस्कान है, मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, ऐ लोगों, तुम मुझे कत्ल करने के लिए जा रहे हो? नहीं नहीं, वो देखो मेरे नाना जान अपने हाथों में आबे कौसर का जाम लेकर के खड़े हैं, वो देखो मेरे बाबा जान हजरत अली मुझे बुला रहे हैं, वो देखो मेरी माँ हजरत फातिमा जो मेरा इंतजार कर रही है, तुम क्या मुझे मारोगे? इतना कहना था कि जल्लादों को हुक्म दिया गया कि इमाम मुस्लिम के सर को तन से जुदा कर दिया जाए। हजरात, तारीख बताती है इमाम मुस्लिम के शहादत का वाकया बड़ा ही दर्दनाक है। एक जल्लाद ने हजरत इमाम मुस्लिम के जुल्फों को पकड़ा और दूसरे जल्लाद ने तलवार को बयान से निकाला और आपके गर्दने मुबारक पर एक ऐसा वार करता है कि हजरात, तारीख बताती है, तारीख के औराक शाहिद है, इमाम मुस्लिम के गर्दन पर जब वार होता है तो उन जालिमों ने खुद देखा कि जो है जिस जल्लाद ने आपके जुल्फे मुबारक को पकड़े हुआ था, वो सर कटने के बाद उसके हाथों में रह गया और जिसमें मुबारक शाही महल से नीचे जमीन पर आ गिरा। हजरात, तारीख के औराक शाहिद है, जब इस तरह से आपकी शहादत हुई है तो फरिश्तों की चीखें निकल गई, जन्नत के गिलमा रोने लगी, चार जानिब से फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, ये तेरा कैसा इम्तिहान है, तेरे महबूब के नवासों को इस तरह से कत्ल किया जा रहा है। हजरात, वो फरिश्ते रब की बारगाह में ज़ारो कतार रो रहे हैं, इधर हजरत मुस्लिम का सर कट चुका है, उस जल्लाद के हाथों में आपका सरे मुबारक है और जिस्म जो है वो शाही महल से जमीन पर आ गिरा और जब जमीन पर आ गिरा, रास्ता आते जाते लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के जिस्म को जब देखा तो उनके अंदर और दहशत पैदा हो गई, उनके अंदर और खौफ और हिरास पैदा हो गया। हजरात, वही खातून फौरन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचती है और जो है तरह तरह के अल्फाज बोल करके और कहती है, ऐ मलऊन सुन ले, तू शैतान से भी बढ़कर शैतान है। अरे वो इब्लीस था जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने उसे मरदूद शहादा कह दिया, लेकिन तूने तो नवाज़े रसूल को सरों को काटा है, तूने तो इन्हें नाहक कत्ल किया है, तेरा क्या हश्र होगा, तुझे कौन से जहन्नम की कौन से कटघरी में रखा जाएगा। हजरात, तारीख बताती है तो वो कहती है, ऐ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, हजरत मुस्लिम बिन अकील के सरे मुबारक को तू मुझे दे दे, इसके बदले में जो दौलत कहे मैं देने के लिए तैयार हूँ। हजरात, इस तरह से ना ज़ेबा कलिमात
नाज़ेबा अल-बार हजरत तोआ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को सुना रही थी। आखिरकार वो वक्त आया, अल-मुख्तसर में यूं समझ लो कि इमाम मुस्लिम जो है शहीद हुए। हजरत तोआ जो है आपके जिस्म मुबारक को लेने के लिए पहुंचती है और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से फरियाद करती है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जो है जल्लाद को कोई बात ऐसी बुरी लगी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कि जल्लाद को हुक्म दिया गया कि हजरत तोआ के सर को काट दिया जाए। एक ही वार में हजरत तोआ के सर को भी काट दिया गया। गोया कि दुनिया वालों को इन तमाम शहीदों ने ये कहा कहकर पैगाम दिया कि ऐ लोगों, करबला की सरजमीन पर कटने वाले जितने थे वो कोई और नहीं बल्कि अली के घर वाले थे, नबी के नवासे थे, नबी के चाहने वाले थे, नबी के अहले बैत थे, नबी के मानने वाले थे, नबी के अहले बैत अतहार थे, अली के चाहने वाले थे। और मैं यही कहूँगा, अली की जब बात आती है तो मैं यही कहता हूँ कि कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, कुरान था, कुरान